یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ اتوار 1 فروری کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ غزہ اور خان یونس میں اسرائیلی حملوں میں 32 افراد ہلاک، قطر اور مصر کی مذمت۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، لیکن اس متعلق خلیجی ممالک کو آگاہ نہیں کر سکتے۔ جانیے ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہ پانے پر اگر صدر ٹرمپ نے فوجی کارروائی کی منظوری دے دی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ BBC کے خصوصی نامہ نگار فرینک گارڈنر اس حوالے سے 7 ممکنہ نتائج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ بھی جانیے کہ ایران پر ممکنہ امریکی حملے پر اسرائیلی خاموشی کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا امریکہ سے وینزویلا کا تیل خریدے گا۔ کانگو میں کان بیٹھنے سے 200 سے زائد افراد ہلاک، بلوچستان کے 12 مقامات پر حملے، شدت پسندوں کی منظم کارروائیوں کے کوئٹہ تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ تجزیہ کار بولا۔ میں کہوں گا یہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی ہے، میں کہوں گا یہ ریاست پاکستان کی ناکامی ہے، ہمیں اپنی ناکامیوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ جانیے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بڑی عمارتوں میں فائر سیفٹی پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ ماضی کے واقعات اور سانحوں سے کوئی سبق نہیں لیا جاتا؟ اور گول پلازا جیسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی جانیے کہ وادی چیپورسن کے مکین سخت سردی میں بھی دروازے کھول کر کیوں سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات بھی آج کے سیربین میں شامل رہے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ سنیچر کے روز غزہ کی پٹی اور خان یونس میں بے گھر افراد کے خیموں پر ہونے والے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 32 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفنس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں رہائشی اپارٹمنٹس، خیمے، پناہ گاہیں اور ایک پولیس اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینیوں کے مطابق یہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے بعد سے ہونے والا سب سے شدید حملہ ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش نے AFP کو بتایا کہ متاثرین کو شمال میں غزہ شہر کے الشفا ہسپتال اور جنوب میں خان یونس کے ناصر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طبی شعبہ شدید بحران کا شکار ہے، جہاں ادویات، آلات اور سامان کی کمی کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کی فوری بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق یہ صورتحال جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب غزہ کی مصر کے ساتھ سرحدی گزرگاہ رفح کراسنگ آج دوبارہ کھولی جانی ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق مصر کی وزارت خارجہ نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جنگ بندی مذاکرات کے دوران ثالث کا کردار ادا کرنے والے ایک اور اہم ملک قطر نے بھی اسرائیل کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ Israel has repeatedly violated the ceasefire since October, and for most Palestinians, it never felt the war had ever ended. And with these new attacks, people fear it will impact the reopening of the crossing on Sunday. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کے ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور اس بارے میں خلیجی ممالک لا علم ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے خلیجی ریاستوں کو ایران کے حوالے سے اپنے منصوبے سے لا علم رکھنے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہم انہیں اپنا منصوبہ نہیں بتا سکتے۔ اگر میں نے انہیں اپنا پلان بتایا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسا میں آپ کو بتا دوں۔ در حقیقت یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ منصوبہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ بصورت دیگر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ Some people think that
some people don't. We could make a negotiated deal that would be satisfactory with no nuclear weapons. They said they should do that, but I don't know that they will, but they are talking to us. Seriously talking to us. सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि हमने वहां एक बहरी बेड़ा भेजा है। वेनेजुएला में जो हमने भेजा था उससे कहीं बड़ा, जो अब भी वही है। इससे कबल जुमे की रात व्हाइट हाउस में साफियों से बातचीत के दौरान जब सदर ट्रंप से खलीज में अमेरिकी फौज की बढ़ती हुई मौजूदगी के मुतल्लक पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं ये कह सकता हूं वो यानी ईरान एक मुआहिदा करना चाहते हैं। ताहम उन्होंने इस बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने तेहरान को मुआहिदा करने के लिए कोई डेडलाइन दी है तो ट्रंप ने कहा सिर्फ वो ही यकीनी तौर पर जानते हैं। सदर ट्रंप ने नामा निगारों को मजीद बताया कि उम्मीद है कि हमारा मुआहिदा हो जाएगा। अगर हम किसी मुआहिदे पर पहुंच जाते हैं तो अच्छा होगा, अगर हमारा मुआहिदा नहीं होता तो हम देखेंगे कि क्या होता है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने तेहरान को खबरदार किया था कि अब अमेरिकी बहरी बेड़े उसके करीब पहुंच रहे हैं और ईरान के पास अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वक्त खत्म होता जा रहा है। सामीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आइंदा चंद दिनों में ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले के इम्कानात भी अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आखिरी लम्हे में ईरान के साथ कोई सिफारती मुआहिदा तय ना पाया और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी कार्रवाई की मंजूरी दे दी तो इसके नताइज क्या होंगे? माहिरीन के मुताबिक ऐसे हमले के नतीजे में खित्ते में वसी पैमाने पर जंग, तेल की कीमतों में शदीद इजाफा, खलीजी ममालिक का अदम इस्तेकाम और आलमी ताकतों के बराह रास्त आमने सामने आने का खतरा भी पैदा हो सकता है। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई और इत्तेहादी मलेशियाओं का मुतहर्रिक होना सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकता है। फ्रैंक गार्डनर के तर्जिए पर मबनी सुनिए हसन अब्बास की ये रिपोर्ट। अगर अमेरिका का ईरान के साथ आखिरी लम्हे में कोई मुआहिदा ना हो सका और सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अफवाज को हमले का हुक्म दे दें तो इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं? BBC के खसूसी नामा निगार फ्रैंक गार्डनर इस हवाले से 7 मुमकिन नताइज की निशानदेही करते हैं। जमहूरियत की तरफ मुंतकिली। फ्रैंक गार्डनर के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाई और बहरी अफवाज महदूद और दुरुस्त हमले करते हुए अपना हदफ अस्करी और जोहरी तनसीबात को रखेंगे। अगर पहले से कमज़ोर हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो उम्मीद की जा रही है कि मुल्क आखिरकार हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ सकेगा और ईरान दोबारा दुनिया के साथ जुड़ जाएगा। ताहम ये एक पुरुम्मीद नतीजा होगा क्योंकि इराक और लिबिया में मगरबी फौजी मुदाखलत के बावजूद जमहूरियत की पुरअमन मुंतकिली मुमकिन नहीं हो सकी। हुकूमत बच जाती है मगर पॉलिसियों में नरमी ले आती है। फ्रैंक गार्डनर के मुताबिक इसे वेनेजुएला मॉडल कहा जा सकता है, जिसमें अमेरिका की सख्त और फौरी कार्रवाई से हुकूमत तो बरकरार रहती है लेकिन इसकी पॉलिसियों में नरमी आ जाती है। ये सूरत हाल अगरचा बड़ी तादाद में ईरानी अवाम को मुतमईन नहीं करेगी लेकिन हुकूमत को मशरिक वस्ता में मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत कम करने, अपने जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने या महदूद करने और मुजाहिरों को दबाने में नरमी लाने पर मजबूर कर सकती है। हुकूमत गिर जाती है और इसकी जगह फौजी हुकूमत कायम हो जाती है। फ्रैंक गार्डनर के मुताबिक बहुत से लोग समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा मुमकिना नतीजा हो सकता है। अगरचा हुकूमत अवाम में गैर मकबूल है और बरसों से जारी हर नई एहतजाजी लहर इसे मजीद कमजोर करती है, लेकिन एक वसी और ताकतवर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर मौजूद है जो मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरान जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अफवाज और पड़ोसी ममालिक पर हमला कर दे। इस पर फ्रैंक गार्डनर का कहना है कि अगरचा ईरान अमरीकी बहरिया और फिजाइया की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो अब भी अपने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़खायर के जरिए हमला कर सकता है, जिनमें से कई गारों, ज़ेरे ज़मीन या दूर दराज पहाड़ी इलाकों में छुपाए गए हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई में खलीज में बारूदी सुरंगें बिछा दे। ये खतरा तवील अरसे से आलमी बहरी तिजारत और तेल की फराहमी के लिए मौजूद रहा है। ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ आबनाए हर्मुज़ नहायत अहम गुज़रगाह है। दुनिया की तकरीबन 20% माया कुदरती गैस यानी LNG की बरामदात और 20 से 25% तेल और इसकी मसनूआत हर साल इसी रास्ते से गुजरती हैं। ईरान ने तेज़ी से समंदरी बारूदी सुरंगें बिछाने की मशक़ें की हैं। अगर वो ऐसा करता है तो इसका आलमी तिजारत और तेल की कीमतों पर नागुज़ीर असर पड़ेगा। ईरान जवाबी कार्रवाई में अमरीकी जंगी जहाज़ को तबाह कर दे। फ्रैंक गार्डनर कहते हैं कि खलीज में तैनात एक अमरीकी बहरी जहाज़ के कप्तान ने एक बार उन्हें बताया कि ईरान की तरफ से जिस खतरे की उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र है वो झुंड की शक्ल में हमला है। इससे मुराद ये है कि ईरान एक या कई अहदाफ पर इतने ज्यादा बारूदी ड्रोन्स और तेज रफ्तार जंगी कश्तियों से हमला करे कि अमरीकी बहरिया का ताकतवर दिफाई निज़ाम भी बर वक्त सबको ख़त्म करने में नाकाम हो जाए, हुकूमत गिर जाए और अफरा तफरी फैल जाए। ये एक बड़ा खतरा है और कतर और सऊदी अरब जैसे पड़ोसी ममालिक की बड़ी तशवीश का बायस है। खाना जंगी के इम्कान के साथ साथ जैसा कि शाम, यमन और लिबिया में देखा गया, ये खतरा भी मौजूद है कि अफरा तफरी और इंतशार के दौरान नस्ली कशीदगी मुसल्लह तसादुम में बदल जाए, जबकि कुर्द, बलोच और दीगर माइनॉरिटीज़ मुल्क गिर ताकत के खला में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करें।
मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जानिब से बहरी बेड़ों की तैनाती और ईरान पर मुमकिन हमले की क़ियास आराइयों के दौरान इसराइल की गैर मामूली खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का खुलकर ख़्वाह रहने वाला इसराइल इस बार अवामी सतह पर ना तो कोई बयानात दे रहा है और ना ही वाशिंगटन की मुमकिन कार्रवाई पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। इसराइली तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि इस बार क़यादत अमेरिका के हाथ में रहे, क्योंकि अस्करी ताकत, आलमी असर और रसूख और फैसला कुन कार्रवाई की सलाहियत वाशिंगटन के पास ज़्यादा है। इसराइल समझता है कि पस पर्दा रहकर असरअंदाज होना ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। इसराइली इंटेलिजेंस से वाबस्ता साबिक एहलकारों के मुताबिक नेतन्याहू निजी तौर पर अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर हमला हो तो वो महदूद ना हो, बल्कि इसका हदफ ईरान में हुकूमत की तब्दीली हो। इसराइल को खदशा है कि अगर सिर्फ अलामती हमला हुआ या कोई नया मुआहिदा तय पा गया तो ईरानी हुकूमत मजीद मजबूत हो सकती है, जो इसराइल के लिए तवीलुल मुद्दती खतरा बनेगी। इसराइल की नज़र में ईरान की हुकूमत का खात्मा न सिर्फ जोहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को कम करेगा बल्कि खित्ते में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों को भी कमजोर करेगा। ताहम अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई ऐसा मुआहिदा तय पा जाता है जो सिर्फ जोहरी प्रोग्राम तक महदूद हो तो ये इसराइल के लिए तशवीश का बाइस होगा। यानी इसराइल की खामोशी दरअसल एक वाज़ेह पैगाम है। फैसला कुन लम्हा करीब है और वो चाहता है कि ये फैसला पूरी कुव्वत के साथ हो, लेकिन अमरीकियों के हाथों से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इंडिया के साथ मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत इंडिया अमेरिका से वेनेज़ुएला का तेल खरीदेगा। याद रहे कि वेनेज़ुएला के साबिक सदर निकोलस मादुरो की मासूली और उन्हें अमेरिका की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के बाद अमेरिका वेनेज़ुएला की तेल की सनत पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। शनिचर के रोज एयरफोर्स वन पर सहाफ़ियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वेनेज़ुएला अब अमेरिका को भारी मिकदार में तेल फराहम करने के लिए तैयार है। साफी की जानिब से सवाल पर कि क्या चीन वेनेज़ुएला को तेल के लिए अदा की गई रकम वापस ले पाएगा, ट्रंप का कहना था, मुझे इस बारे में इल्म नहीं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अगर चीन आना चाहता है तो हम खुशामदीद कहेंगे और हमारा तेल पर बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। हम चीन को खुशामदीद कहते हैं। You know, we welcome China. We've already made a deal. India's coming in, and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in and buy oil. ट्रंप ने मजीद कहा कि हम पहले ही एक मुआहिदा कर चुके हैं, इंडिया आ रहा है और वो ईरान से खरीदने की बजाय वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा। हम पहले ही ये मुआहिदा कर चुके हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन का भी वेनेज़ुएला का तेल खरीदने का खैर मकदम है, वो आकर तेल खरीद सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर इंडिया की जानब से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर इंडिया पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया था। दरिया सना इंडिया की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने ट्रंप के इस दावे पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने यानी ट्रंप ने हमें बताया कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि इंडिया ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब ये यानी इंडिया वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा। सदर ट्रंप हमें मुसलसल इस बारे में मालूमात दे रहे हैं कि हमारी अपनी हुकूमत ने क्या किया है या क्या करने वाली है। जमहूरिया कांगो में ज़ेर ज़मीन एक कान बम किया जा रहा है। ये वाक़या सूबाई शुमाली क्यो के कस्बे रुबाया में पेश आया, जहां हुकाम के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद कान ज़मीन बोस हो गई। हुकूमती तर्जमान ने बताया कि हादसे के वक्त हलाकतों की हतमी तादाद से मुतल्लक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ताहम जिस वक्त हादसा हुआ वहां ख़वातीन और बच्चे भी कोल्टन निकालने में मुलाकात की। रुबाया उन कई कस्बों में शामिल है जो बागियों के ज़ेरे कंट्रोल है। ये कान दुनिया के कोल्टन के ज़खायर का तकरीबन 15% और कांगो के मजमूई ज़खायर का निस्फ रखती है। BBC की टीम ने जुलाई 2025 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के 12 शहरों में हफ्ते के रोज होने वाले बेअक वक्त
मुनज़्ज़म शिद्दत पसंद हमलों ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हुकूमत के मुताबिक इन कार्रवाइयों और जवाबी ऑपरेशन में कम अज कम 37 शिद्दत पसंद और 10 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए, जबकि सिक्योरिटी ज़राए मजमूई तादाद 100 से ज़ायद बता रहे हैं। BBC के मुताबिक इन हमलों में 18 आम शहरियों की हलाकत की इतलात भी हैं, जिनकी सरकारी तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी। इस बारे में मजीद सूरत हाल बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काज़म। सबसे पहले इन हमलों का आगाज़ सरियाब रोड के इलाकों से हुआ। सरियाब रोड के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो हमलावर थे उन्होंने पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। जो सरकारी दफातर वगैरह थे या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के जो मोर्चे थे या चेक पॉइंट्स थे उन पे हमले किए गए। सरियाब के इलाके में मुख्तलिफ़ बैंकों पे हमले हुए हैं। इसके अलावा जो पुलिस थाने हैं उन पे भी हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। इन हमलों का दायरा बाद में शहर के जो रेड जोन का इलाका है उस तक वसी हो गया। इस दौरान शहरियों ने बताया कि उन्हें सरियाब के इलाके में और रेलवे स्टेशन और जो रेड जोन में जिना रोड का इलाका है उसमें फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। और सुबह 9:30 बजे के करीब जो ईदी चौक है और जिसे आकी चौक भी कहा जाता है वहाँ एक बहुत बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ और ये धमाका इतना शदीद था। इस धमाके के नतीजे में जिना रोड पे जो कम्प्लेक्सेस थे, यूनिवर्सल कम्प्लेक्स या सलीम कम्प्लेक्स, उनके शीशे टूट गए। रेड जोन के कुर्ब जवार के इलाके हैं उनमें से दिन के 1 बजे तक फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं। इन हमलों के बायस मोबाइल पे जो इंटरनेट सर्विस है उसको बंद किया गया। इसके साथ ही कोयटा शहर और पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं उनके दरमियान जो ट्रेन सर्विस है वो भी मुअत्तल की गई है आज के लिए। कोयटा शहर के अलावा जिन दीगर शहरों से हमलों की इत्तलात मौसूल हुई हैं उनमें नोशकी, दालबंदीन, खारान, मस्तुंग, कलात, तुरबत, पसनी शामिल हैं। इसके अलावा ज़िला केच में जो दूसरे जो 2-3 शहर है वहाँ से भी हमलों की इत्तलात मौसूल हुई है। खारान में लोगों ने हमें बताया कि वहाँ एक घर पे हमला किया गया जिसमें 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक बासर कबायली शख्सियत भी शामिल हैं। इसके अलावा उनके घर को भी जलाया गया है। इसके साथ साथ जो पसनी का इलाका है वहाँ वफाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दफ्तर है, उसको भी हमले का निशाना बनाया गया है। और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ जो 6 हमलावर थे, एक खातून समेत, वो मारे गए हैं। और इसके अलावा बाज़ इलाकों में जो सरकारी एहलकार हैं उनको यरगमाल बनाने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिनमें नोशकी में डिप्टी कमिश्नर और उनके अहल खाना भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में साबिक आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर से शोरिश का आगाज़ हुआ था, लेकिन उस वक्त से 2024 तक जो हमले होते रहे हैं वो इस नौइयत के नहीं थे। लेकिन 2024 से लेकर अब तक जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। अब वो शहरों के अंदर भी हमले कर रहे हैं। इसके अलावा जो शराए हैं उनको भी ब्लॉक करके वहाँ भी नाकाबंदी कर रहे हैं। इन हमलों के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक बयान आया है। उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करके इन हमलों को नाकाम बनाया है। उनका ये कहना है कि इन कार्रवाइयों में 10 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में 37 जो अस्करियत पसंद है वो हलाक हुए हैं। इन हमलों की ज़िम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। और उनका ये कहना है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के 10 के करीब शहरों में ये हमले किए गए और उन्होंने इन हमलों को ऑपरेशन यूरोप का दूसरा मरहला करार दिया है। सामीन, कोयटा जैसे निस्बतन महफूज समझे जाने वाले शहर में मुनज़्ज़म हमले, क्या ये हमले सिक्योरिटी चैलेंज के साथ साथ एक वाज़ेह पैगाम भी हैं कि शिद्दत पसंद नेटवर्क मुनज़्ज़म है? और क्या मुकामी हिमायत के बगैर शिद्दत पसंद इस हद तक पहुंच सकते थे? इस सवाल का जवाब जानते हैं सियासी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी से। मुज़म्मिल सोहरवर्दी,
बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर हमले। शिद्दत पसंदों की इन मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का कोयटा तक पहुंचने का मतलब क्या है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। हम्म मैं कहूँगा ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है। मैं कहूँगा ये रियासत पाकिस्तान की नाकामी है। हमें अपनी नाकामियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पहली बात यह है कि हम अपनी नाकामी तस्लीम करेंगे तो अपनी इस्लाह करेंगे। देखें ये हेयर ऑफ 2 है। हेयर ऑफ 1 भी इतना ही जबरदस्त था। हेयर ऑफ 1 के बाद हमें यकीन दिलाया गया कि आइंदा दहशतगर्द इस पोजीशन में नहीं होंगे, हमने उनकी कमर तोड़ दी है। लेकिन उन्होंने हेयर ऑफ 2 हमें करके दिखाया है और दोबारा रियासत को चैलेंज किया है। 12 शहरों में उन्होंने ऑपरेशन किया है, बैंक लूटे हैं, सीटीडी के दफ्तरों पे कब्जा किया है, रियासती इदारों के दफातर पे कब्जा किया है, रिट कायम की है। और क्या होता है? आप कहेंगे जी हमने खाली करा लिए। भाई उन्होंने कंट्रोल 12 घंटे रखा। 12 घंटे 12 शहरों में बलूचिस्तान के उन्होंने अपना कंट्रोल रखा, उन्होंने हमारे लोग मारे, हमने उनके लोग मारे, एक जंग का समा था, स्टेट विद इन स्टेट वाली बात है। हम ये कैसे कह लें कि मैं नहीं इसको मानता कि ये जी हमारे सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी है, हमने बड़ा फतह के जश्न झंडे गाड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स अ टोटल फेलियर, इट्स अ कोलैप्स और पीपल शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट। कि सवाल ये है कि हर कभी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, कभी हेरॉफ वो 1 हो जाता है, कभी किसी शहर पे कब्जा हो जाता है, कभी किसी शहर पे कब्जा हो जाता है। और हम केपी के हवाले से तो चलें जी, फौज का बयानिया है कि केपी की हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, इसलिए हम दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दे सकते। केपी के हवाले से आपका बयानिया है कि वहाँ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा, लिहाजा हम वहाँ दहशतगर्दों को शिकस्त नहीं दे सकते। बलूचिस्तान के हवाले से तो फौज का ये बयानिया नहीं है। आप तो कहते हैं सरफराज बुगटी जो है वो गुड बॉय है, वो स्वीट बॉय है, वो तो दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ा है। वो तो नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात पर मनोअन अमल कर रहा है। आप कहते हैं वहां डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां बन गई हैं, वहां तो कमाल हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये कमाल है जो आप हमें दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान का दुनिया में एक बनाना रिपब्लिक का मजाक बन जाता है। हमारी वहां पे कोर मौजूद है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे मौजूद हैं, हम क्यों नहीं ये नेटवर्क तोड़ पाते? हम्म ये क्या नेटवर्क है जिसमें 12 शहरों पर हमला हो जाता है और हमारे किसी इंटेलिजेंस नेटवर्क को पता नहीं लगता इसकी तैयारी का, उनकी सहूलतकारी का, उनके आने का, उनके जाने का। हमें कुछ पता ही नहीं लगता। वो आ जाते हैं, 12-12 शहरों पर कब्जा करते हैं, 12-12 घंटे कब्जा रखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हमने उनको मार दिया। भाई वो तो आए ही मरने थे, जिंदा निकल जाने के लिए आए होते तो घंटे बाद वापस चले जाते। हम्म वो तो अपना कब्जा बरकरार रख रहे थे, फिर आपने उनसे कब्जा छुड़ाया, हमारी पूरी फौज गई, हमने उन्हें शिकस्त दे दी। यकीनन हम नंबर में ज्यादा हैं, हमारी फौज के पास असला बड़ा है, हमारे पास एयर पावर है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास ड्रोन है, हमारे पास सब कुछ है। मैं मानता हूं हमने उनको शिकस्त दी, लेकिन उनका आ जाना ही हमारी नाकामी है। मैं ये कोई फतह की नहीं कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उनसे इलाके खाली करा लिए। हम्म भाई करा ही लेने थे। हम तो, मेरा मतलब है, भारत से अपने इलाके खाली करा लें तो वो ये पिद्दी और पिद्दी के शोरबे क्या चीज है? सवाल तो बहुत सिंपल है कि वो आकर किस तरह इन इलाकों पर कब्जा कर जाते हैं। अब देखें ना, बशीर ज़ेब की वीडियोस आई हैं, जो बीएलए के सरबराह हैं, मोटरसाइकिल पे कि मैं इसकी जो है कर रहा हूँ, क़यादत कर रहा हूँ। अगर बशीर ज़ेब पाकिस्तान में है और उसने हरफ 2 की क़यादत की है, तो फिर बशीर ज़ेब जिंदा कैसे बच गया? हम तो ये जानना चाहेंगे ना कि फिर बशीर ज़ेब आपसे जिंदा बच के कैसे चला गया? इसका मतलब है कि लोग आपसे जिंदा बच के गए हैं। अगर बशीर ज़ेब भी जिंदा बच गया तो फिर बाकी जो मारे हैं वो तो बेचारे प्यादे थे। आप वीडियोस तो देखें बीएलए के अकाउंट से, कैसी-कैसी वीडियोस हैं, किस तरह उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, किस तरह अपना कब्जा रखा है। मैं मानता हूँ वो सारी सच्ची नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो सारी सच्ची हैं, लेकिन सारी झूठी भी तो नहीं है ना। आफ्टर ऑल 12 जगहों पे आप भी तो मानते हैं कि हमला हुआ है। आप कौन सा कह रहे हैं कहीं हमला नहीं हुआ? आप भी कह रहे हैं 12 जगहों पर हमला हुआ है। आप भी कह रहे हैं हमने 67 दहशतगर्द मारे हैं। भैया आपने मारे हैं इसका मतलब 150 आए हैं जिनमें से 67 आपने मार दिए हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं बीच में से कई जिंदा भाग गए हैं। भाई जो भाग गए हैं आधे से ज्यादा तो भाग गए हैं ना, बाकी आपने मारे हैं। आप अपने नुकसान छुपा रहे हैं।
میں نہیں مانتا 10 لوگ صرف ہمارے مارے گئے ہیں. لہذا میرے خیال میں ہمیں آج پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ناکامی ہے، ریاست کی ناکامی ہے، اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اس کے حوالے سے بیٹھنا پڑے گا. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی بلوچستان بہت بڑا ہے، وہاں پر اتنے 1000 کلومیٹر سڑکیں ہیں، ان کو سیف نہیں کیا جا سکتا. بھائی جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے سیف کرتے ہیں؟ ریاست کے جتنے بھی وسائل لگتے ہیں لگائے جائیں، کیوں نہیں لگائے جاتے؟ ریاست کو وہاں بلوچستان کو سیف کرنے کے لیے جتنا بھی پیسہ چاہیے، یہ وار ٹائپ سچویشن ہے. آپ کہیں جی کہ بلوچستان کے پاس وسائل نہیں ہے. بھائی اس وقت تو پاکستان کی بقا کا سوال ہے. ہم نے بلوچستان کو سیف کرنے کے وسائل نہیں خرچنے، ہم نے پاکستان کی بقا پر پیسے خرچنے ہیں. آپ نیشنل ایکسچیکر سے دیں، آپ جیسے مرضی دیں، آپ آئینی ترمیم کر کے بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے فنڈز پیدا کریں، جو بھی کریں. اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ جی وہ افغانستان سے آئے تھے تو اب افغانستان پہ تو ہم حملہ نہیں کر سکتے. بھئی ہم افغانستان پر حملہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بند گئے ہیں. ہم کیوں قطر اور ترکی کے آگے یرغمال بنے ہوئے ہیں؟ ان کے اپنے مفادات ہیں. ہمارے یہاں اتنا بڑا حملہ ہو گیا، ہمیں تن کے افغانستان پہ آج ہم جواب دینا چاہیے. صحیح. مزمل سہروردی، آپ کا شکریہ. سامعین، چند روز قبل پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی ہولناک آگ نے پورے شہر کو سوگ میں مبتلا کر دیا تھا. اس افسوسناک واقعے میں 70 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، جبکہ سینکڑوں خاندانوں کا روزگار پلک جھپکتے میں راکھ بن گیا. یہ سانیہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی ناکامی کی علامت بھی تھا. ٹاؤن پلاننگ میں حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی، ناقص فائر سیفٹی انتظامات، ایمرجنسی راستوں کی عدم دستیابی، غیر معیاری برقی نظام اور باقاعدہ انسپیکشن کا فقدان، یہ ایسے عوامل ہیں جنہیں برسوں سے نظر انداز کیا جاتا رہا. عمارتوں کی انتظامیہ، دکانداروں کی لاپرواہی، عوام کی عدم آگاہی اور سب سے بڑھ کر حکومتی نگرانی کی کمزوری نے ایسے حادثات کو ناگزیر بنا دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہر سانے کے بعد صرف افسوس کافی ہے یا اب عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ کراچی کی بڑی عمارتوں میں فائر سیفٹی پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ ان سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے عالیہ نازکی نے. آپ کو پتہ ہے شاید ہی ایسا کوئی دن گزرتا ہے جب کراچی میں کہیں نہ کہیں آگ نہ لگے، آتش زدگی کا کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا واقعہ پیش نہ آئے. ابھی کچھ ہی دن پہلے گل پلازا میں لگنے والی خوفناک آگ کے مناظر ہم سب نے دیکھے. اس آگ میں یہ شاپنگ کمپلیکس تو تباہ ہوا ہی، ساتھ ہی 70 سے زیادہ معصوم جانیں گئیں اور سینکڑوں لوگوں کا کاروبار خاکستر ہو گیا. گل پلازا میں لگنے والی آگ ایک سانحہ ہے، لیکن مسئلہ اس ایک شاپنگ کمپلیکس میں لگنے والی اس ایک آگ سے بھی بڑا ہے. کراچی میں ہر دوسرے تیسرے دن آتش زدگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے. پچھلے سال 12 ماہ میں 2590 غالباً آگ لگنے کے آتش زدگی کے واقعات ہوئے کراچی شہر میں، اور آپ کو کہیں اس طرح کا انفارچونیٹ سانحہ نظر نہیں آیا. ابھی گل پلازا کی آگ بجھی نہیں تھی کہ کراچی کے علاقے لانڈھی کے ایک گودام میں آگ لگ گئی. آگ لگنے کے دسیوں، درجنوں بلکہ سینکڑوں واقعات، املاک کو نقصان اور جانوں کا ضیاع. گل پلازا میں لگنے والی آگ سے ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں پیش آنے والے آگ لگنے کے واقعات سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا. آگ کیوں نہیں بجھی؟ سوال یہ کریں ریسکیو کیوں نہیں ہوا؟ دروازے توڑنے والے کہاں تھے؟ یہاں تم پوری بلڈنگیں گرا دیتے ہو. آج پروگرام میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے حقائق اور فیکٹرز ہیں جنہیں ٹاؤن پلانرز، بلڈنگ مینجمنٹ، دکاندار، شاپنگ کرنے والے عوام اور سب سے بڑھ کر حکومت بظاہر نظر انداز کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان واقعات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے. ایسا کیوں لگتا ہے کہ ماضی کے واقعات اور سانحوں سے کوئی سبق نہیں لیا جاتا؟ اور گل پلازا جیسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پچھلے سال 2500 سے زیادہ آگ لگنے کے واقعات میں سے سب سے زیادہ 278 واقعات اکتوبر میں پیش آئے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک آدھ مہینے کو چھوڑ کر سال کے ہر ماہ میں درجنوں حادثات ہوئے. 2024 میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی میونسپل کمشنر سیکریٹریٹ نے کراچی کے 3 اہم علاقوں شاہراہ فیصل، آئی چندری گڑھ روڈ، شاہراہ قائدین اور طارق روڈ پر بنی اہم عمارتوں پر ایک فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹ شائع کی تھی.
म्युनिसिपल कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक इन अहम शाहराहों पर बनी इमारतों में फायर सेफ्टी के हवाले से बहुत संजीदा मसाइल सामने आए थे, जिनके मुतल्लिक कहा गया था कि अगर इनका तदारुक न किया गया तो मुस्तक़बिल में कीमती जानों का ज़िया और इमलाक का नुकसान हो सकता है। इनमें से ज़्यादातर की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श निकली और इनको कानून के मुताबिक इम्प्रूव करने, बेहतर बनाने का कहा गया। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने इस बारे में BBC से बात करते हुए तस्लीम किया कि मसाइल की निशानदही के बावजूद इस हुक्मनामे को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया। कोताही है ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ इदारे कर जाते हैं इन मामलात को। क्योंकि अगर सख्त फ़ैसला होता तो बिल्डिंग को सील करना पड़ता, बिल्डिंग को सील करते तो फिर इल्ज़ाम लगता कि आपने इतने सारे ताजिरों को बेरोज़गार कर दिया, इतने सारे मेहनत कशों को आपने बेरोज़गार कर दिया। तो मल्टीपल चीज़ें मैं कहूँगा, मैं समझता हूँ उसके अंदर बिल्डिंग कंट्रोल का भी आप किरदार कहें, एडमिनिस्ट्रेशन का भी किरदार कहें, KMC का भी फायर वालों का आप किरदार कह लें, जो हमारा सिविल डिफेंस वाले हैं उनका भी किरदार है, जो बिल्डर है या बिल्डिंग की एसोसिएशन है उसका भी एक किरदार आप कह सकते हैं, जो दुकानदार हैं जो फायर सेफ्टी एग्जिट पर आके बैठ जाते हैं उनका भी एक किरदार हो सकता है। इस ऑडिट सर्वे के नताइज में से आपको सिर्फ एक फैक्टर के बारे में तफसील से बताते हैं। इसके मुताबिक शाहराह कायदीन और तारिक रोड पर सर्वे की गई 145 इमारतों में से 107 इमारतों में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट या हंगामी अखराज का रास्ता था ही नहीं। इसी तरह II चुंदरीगढ़ रोड पर 45 में से 10 और शाहराह फैसल पर 77 में से 27 इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे। अब सोचें, अगर इन इमारतों में आग लग जाती है और इनमें इखराज का कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या होगा। और बात सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट्स की ही नहीं, जहां तक उन दीगर फायर सेफ्टी मेजर्स की मौजूदगी का सवाल है जिनका जिक्र हम अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, तो ये ऑडिट सर्वे नो और निल जैसे अल्फाज से भरा हुआ है। काजिम अली कराची के साबिक फायर चीफ हैं। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि किसी भी इमारत में आग लग जाने की सूरत में सबसे पहले जहन में ये आता है कि लोग वहाँ से निकलेंगे कैसे, लेकिन यहाँ तो बज़ाहिर लगता है कि दीगर फायर सेफ्टी मेजर्स की तरह फायर एग्जिट को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। फायर एग्जिट्स के बगैर इमारतें बनाने की इजाज़त कैसे मिल जाती है? देखिए, एवैक्यूएशन जो है ना फायर की सूरत में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो जैसा आपने बताया, और ये विदिन 3 मिनट जो है हो जाना चाहिए, क्योंकि स्मोक जो स्प्रेड होता है बहुत तेज़ी से होता है और उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्रिलीन, हाइड्रोजन साइनाइड, ये तमाम वो गैसेस हैं जिनको जब आप इनहेल करते हैं सबसे पहले आप पैरालाइज हो जाते हैं, आप एक मोमेंट रुक जाती है, आप गिर जाते हैं, आपके ऊपर लोग चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तमाम बिल्डिंगों को एवैक्यूएशन ड्रिल करनी चाहिए ताकि वो पीस टाइम के अंदर जब कोई हादसा ना हो उस वक्त अपने मामलात को सीधा कर लें, और अगर एग्जिट नहीं है तो एग्जिट बनाएं कि ऑक्यूपायर जो है वो इन चीज़ों को चेक करे और अपने इंतजामात को पूरा करे। हम देखते हैं जहाँ भी फायर डिजास्टर्स होते हैं बहुत सारी जानों का भी ज़िया होता है, तो बड़े नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखें, बड़े नुकसान से बचने के लिए आपका जो शुरू किया जाता है ना, कंसेप्ट से शुरू किया जाता है। जब भी आप कोई बिजनेस अपने जहन में लाते हैं तो आपके वहाँ कंसेप्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपको LPG स्टेशन बनाना है। अब LPG स्टेशन को आप जो है वो आबादी के दरमियान में नहीं बनेगा, ये कंसेप्ट से ही आपकी सेफ्टी शुरू होगी कि इस व्यक्ति दूर होना चाहिए। हमारे वहाँ कंसेप्ट से ही वो चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद जो है ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते फिर डिज़ाइन के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। डिज़ाइन जो है वो फायर एक्सपर्ट नहीं देखते और ये तमाम अरेंजमेंट जो है जो होने चाहिए वो नहीं होते, जो कि पैसिव फायर प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है, पैसिव फायर प्रोटेक्शन वो होता है जो बिल्डिंग फीचर्स होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है। जो भी मटेरियल इस्तेमाल होगा उसके लिए हीट के अगेंस्ट और फायर के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टिविटी रखी जाती है 1 घंटे की, और एक कंसेप्ट होता है कंपार्टमेंटेशन का कि आग अगर लग जाए तो 1 घंटे उस जगह से बाहर ना जाए, ना स्मोक जाए ना फायर जाए, जो कि पूरे दुनिया के तमाम एडवांस कंट्रीज के अंदर है और यहाँ पे भी रेगुलेशन के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आग लगती है और फौरन फैल जाती है, तो टाइम बहुत कम है और ये जितने भी चीज़ें हैं अरेंजमेंट जो है ना ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। यानी और कुछ नहीं तो तकरीबन 2 साल पहले हुकूमत की अपनी रिपोर्ट में उन तमाम मसाइल की निशानदही की गई थी और उन्हें सही करने का हुक्म जारी किया गया था, जिनकी वजह से गुल प्लाजा जैसी इमारतों में आग लगने, जानी और माली नुकसान होने का खदशा था। इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गुल प्लाजा का वाक़या और भी संगीन हो जाता है और हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इस ऑडिट का भी एक पस मंज़र था। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात एक काफ़ी सीरियस मसला है।
यहाँ तक कि खुद गुल प्लाजा में ये कोई पहली मरतबा आग नहीं लगी, बल्कि 7 अगस्त 2016 को भी इसके एक फ्लोर पर आग लगी थी, जिसमें कई दुकानें जल गई थीं। वैसे तो पिछले 5 बरस में कराची में आग लगने के सैकड़ों बल्कि हज़ारों वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन इनमें से कुछ बड़े वाक़यात आपको याद दिलाते हैं। गुल प्लाजा, क्लिफ्टन शॉपिंग सेंटर, मिलेनियम मॉल, रिम्पा प्लाजा, फर्नीचर मार्केट, गुलिस्तान जौहर, नोमान प्लाजा, आरजे शॉपिंग मॉल, चेज अप डिपार्टमेंटल स्टोर, कोऑपरेटिव मार्केट, चावला मार्केट, इन तमाम प्लाजाज, मॉल्स और स्टोर्स में पिछले 5 साल में आग लग चुकी है। गुल प्लाजा के अलावा हमें ये नहीं पता कि इन केसेस में फायर सेफ्टी मेजर्स किस हद तक फॉलो किए जा रहे थे, लेकिन इन वाक़यात से एक पैटर्न ज़रूर इस्टेब्लिश हो जाता है। देखिए, यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि कराची बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 2023 के सेंसस के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आबादी बढ़ने का मतलब शहर का बढ़ना। तो ऑफ कोर्स ये शहर बड़ा तो हो रहा है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये एक्सपेंशन अनप्लान्ड है, यानी ये किसी मंसूबा बंदी के तहत नहीं हो रहा। शहर की ज़्यादातर इमारतें, ज़्यादातर प्लाजाज बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के कवानीन को फॉलो नहीं करते। अब आप गुल प्लाजा की ही मिसाल ले लें। एक प्लाजा जो 500 दुकानों के लिए बना था, उसमें 17 जनवरी को पेश आने वाले वाक़े के मौके पर 1200 दुकानें थीं। और ये सिर्फ गुल प्लाजा की ही कहानी नहीं, अक्सर इमारतों का यही हाल है। एक तो तजावुज़ात और फिर जदीद फायर फाइटिंग टेक्निक्स का फुक़दान, और उसके ऊपर हुकूमती इदारों और निजी स्टेक होल्डर्स की तरफ से अकाउंटेबिलिटी की कमी। देखें, बार बार आप लोग इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्फोर्समेंट पे हुकूमत उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन बदकिस्मती के साथ रुझान हमारे मुआशरे में ये है कि हुकूमत जब इन्फोर्स करने के लिए जाती है, अपने फ़ैसलों को अमल दरामद करने के लिए जाती है, तो फिर इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और जब इल्ज़ाम तराशी स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं हुकूमत की रिट कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये गुल प्लाजा के केस में इस तरह के और मल्टीपल इंसिडेंट्स को अगर आप देखें तो ये नहीं है कि गुल प्लाजा की फ़ायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुई, उसकी फ़ायर सेफ्टी ऑडिट हुई थी। उसके अंदर जो नुक्स थे उनकी निशानदेही की गई थी, उनकी एसोसिएशन को इंटीमेट इस हवाले से किया गया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ उन्होंने उसकी अमल दरामद नहीं की। अब इस सिचुएशन में जब आप आते हैं तो हुकूमत के पास जो वाहिद रास्ता है अपनी चीज़ों को अमल दरामद का, वो प्रॉपर्टी को सील करना है। जब इस तरह का कोई सख्त फ़ैसला किया जाता है तो फिर लोग ये आवाज़ कसना शुरू कर देते हैं कि ये ताजर दुश्मन अवाम दुश्मन फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें इंतज़ामिया के जो मामलात हैं उनको सियासत से दूर रखना होगा, और अगर हम चाहते हैं कि जो फ़ैसले हुकूमत के हैं उन फ़ैसलों की असल एफिकेसी आपको नज़र आए, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि उसकी अमल दरामद जो है वो यकीनी हो। अगर आपका ताल्लुक कराची से है तो बहुत मुमकिन है कि आप कई बार गुल प्लाजा शॉपिंग के लिए गए हों। ये एक मसरूफ़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां ख़ास तौर पर त्योहारों और बड़े दिनों, शादियों के मौके पर लोगों का रश लगा रहता था। अब तक की जाने वाली तहकीक के मुताबिक गुल प्लाजा में लगने वाली आग की वजह एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, फिर न तो कोई अलार्म और ना ही इखराज के खुले रास्ते। एक बार आग भड़क गई तो उसका अंजाम एक ट्रेजेडी ही होना था। इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड IBC और नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के सेफ्टी कोड के मुताबिक आग, धुएं और जहरीली गैस की वजह से जानों को लाहक खतरात कम करने के लिए हर इमारत में अंदर और बाहर जाने के लिए कम से कम 2 अलग अलग रास्ते होने चाहिए, और इन रास्तों पर ऐसे फायर प्रूफ दरवाजे होने चाहिए जो दोनों तरफ खुलते हों, यानी स्विंग डोर्स। हर बिल्डिंग में एक अप्रूव्ड और सुपरवाइज्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। हर शॉपिंग मॉल का एक तहरीरी और मंजूर शुदा एमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए, और वहाँ काम करने वालों की हर कुछ अरसे बाद फायर ड्रिल्स होनी चाहिए ताकि सबको पता हो कि आग लगने की सूरत में क्या करना है। हर शॉपिंग मॉल के अंदर एक 20 फुट का खुला अहाता हो और मॉल्स के अंदर मौजूद कियोस्क या ठेले एक दूसरे से 20 फुट के फासले पर हों और फायर रिटार्डेंट मटेरियल से बने हों, यानी ऐसा मटेरियल जिससे आग आसानी से न लग सके। हमारे साथी रियाज सुहेल का ताल्लुक कराची से है और उन्होंने गुल प्लाजा के सानहे को करीब से कवर किया है। उन्होंने सानहे के बाद सिंध इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात के बारे में हमें ये रिपोर्ट भेजी। कराची में सालाना तकरीबन 2500 के करीब आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आते हैं। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में कमर्शल और ज़्यादा रश वाली इमारतों के लिए एक जामिया फायर सेफ्टी ऑडिट के निफाज की मुहिम शुरू कर दी है ताकि आइंदा ऐसे हादसा से बचा जा सके।
हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मरहले में 2300 से ज़ायद इमारतों की निशानदेही की गई है जहां फायर ऑडिट्स किए जा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में 450 ज़ायद कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी किए हैं जहां फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतजामात ही मौजूद नहीं थे। हुकाम के मुताबिक जिन इमारतों ने मुकर्ररा मुद्दत में हिफाजती इकदाम मुकम्मल न किए उन्हें ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सील किया जाएगा। दूसरी जानिब जो फायर की सेफ्टी के इंस्पेक्शन के लिए जो इदारा है सिविल डिफेंस, उनका ये कहना है कि उनके पास जो सहूलियात हैं वो महदूद है। ताहम ये दूसरी बात है कि उन्हीं की तरफ से जो सर्टिफिकेशन जारी की जाती है उसी के बाद ही जो रहायशी इमारतें हैं उसमें लोग रहने के लिए पाबंद होते हैं या जो कमर्शियल इमारतें हैं उसके बाद ही उसमें कारोबार खोला जाता है। आपको पता है गुल प्लाजा में जब आग लगी तो फायर फाइटर्स को वहां तक पहुंचने में वक्त लगा और जो आखिरकार वहां पहुंचने में कामयाब भी हुए उनके पास ज़रूरत से कम इक्विपमेंट या आग बुझाने के आलात थे। पानी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जहां उसकी ज़रूरत थी और इस ऑपरेशन में एक फायर फाइटर ने भी अपनी जान गंवाई। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। इनफैक्ट ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं बल्कि इसका शुमार दुनिया के बड़े शहरों में किया जाता है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी के इस शहर में अंदाज़ा लगाएं कितने फायर स्टेशन हैं? सिर्फ 28। यानी ब्रॉडली इन फिगर्स को देखें तो हर 10 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक फायर स्टेशन। इसके मुकाबले में यहाँ बरतानिया का सबसे बड़ा शहर लंदन, जिसकी आबादी 90 लाख के करीब है, यहाँ 103 फायर स्टेशंस हैं, यानी औसतन 87,000 लोगों के लिए एक फायर स्टेशन। मुंबई, जिसका कई बार कराची से मुआवजा किया जाता है, वहाँ तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख आबादी के लिए 34 फायर स्टेशंस हैं। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि मुंबई में भी आतिश ज़दगी के वाक़यात एक बड़ा मसला हैं। खैर, हम बात कराची की कर रहे हैं, तो क्या कराची में फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं और फायर फाइटर्स के पास मुनासिब इक्विपमेंट है? देखें, इसके अंदर ऐसा है कि कराची के अंदर जो फायर फाइटर्स की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 15,000 से 20,000 की है और यहाँ पे जो है 1,000 है। इट मीन्स एक बंदे के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो 15 से 20 लोगों का काम कर रहा है कराची में। इसके बाद फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पे 1914 से काम कर रहा है, 1,000 का अमला है, सामान 1,000 बंदे का मौजूद है, 1,000 बंदे काम भी कर रहे हैं ना। उनकी ट्रेनिंग हो सकती है क्योंकि स्टाफ कम है। सुबह से शाम तक जब आग बुझाएंगे, जब स्पेयर स्टाफ ही नहीं है तो ट्रेनिंग कहाँ से करवाएंगे आप? ठीक है ना, ट्रेनिंग का बंदोबस्त में पानी की शॉर्टेज, फायर स्टेशन के डेडिकेटेड हाइड्रेंट होते थे अपने, वो चीज़ें खत्म हो गई। तो ये सब लोड अल्टीमेटली फायर फाइटर पे आता है ना। उसके बाद फायर डिपार्टमेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटिंग का काम नहीं कर रहा है, बल्कि फायर डिपार्टमेंट जो है वो रेस्क्यू का काम भी कर रहा है। बीचेस के ऊपर जो लाइफ गार्ड हैं वो भी फायर डिपार्टमेंट के पास है। ये तमाम चीज़ें हैं। रिसोर्सेज नहीं है, मेन मनी मटेरियल जो 3M है ना, वो तीनों के तीनों जो है कम है। जो एक आबादी है कराची की वो तकरीबन सेफली अगर रख लें 2 करोड़, वैसे तो 3, साढ़े 3, 4 करोड़ की बात होती है। उसके हिसाब से भी 200 फायर स्टेशन होने चाहिए। जैसा कि आपने भी कहा कि 1914 से वहाँ कराची में जो फायर डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, बरतानवी टाइम पे बना था, लेकिन और आपने ये भी कहा कि कराची की आबादी भी बहुत बढ़ गई है। क्या आपको लगता है जिस तरह से फायर डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज होना चाहिए था उस तरह से वो मॉडर्नाइज हुआ है? आप ये देखें ना कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो कराची की आबादी 4 लाख थी और यहाँ पे तकरीबन 10 फायर टेंडर थे, 2 फायर स्टेशन थे बड़े बड़े और चीफ फायर अफसर अंग्रेज था जो हैंड ओवर करके गया। ठीक है, और बम्बई फायर एक्ट के तहत ये चलता था। वो तमाम चीज़ें जो हैं टाइम के साथ साथ जो है मालूम होती चली गई कि आज फुल फ्लेज 12 स्टेशन है, बाकी जो है ब्रांचेस हैं। कोई पुल के नीचे गाड़ी खड़ी है, कोई पार्क के अंदर गाड़ी खड़ी है, जबकि 200 से ज़्यादा फायर स्टेशन होने चाहिए। देखिए, हादसात किसी भी वक्त कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे निमटने के लिए मुनासिब तदाबीर और हिकमत अमली से उनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जो सवाल पूछे थे कि ऐसा क्यों लगता है कि माजी के वाक़यात और सानहों से कोई सबक नहीं लिया जाता और गुल प्लाजा जैसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। बात तो यह है कि अगर माजी के वाक़यात से सबक सीखा गया होता तो गुल प्लाजा का वाक़या पेश ही ना आता। सोचें, हुकूमती तहकीकात और रिपोर्ट के बावजूद कुछ नहीं किया गया। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी हद तक सब पर आयद होती है। बिल्डर्स,
प्लानर्स, दुकान मालिकान। लेकिन ये भी सच है कि इस वाक़े ने शहर के निज़ाम हुक्मरानी, फायर सेफ्टी, एमरजेंसी रिस्पांस और बल्दियाती तैयारी पर संजीदा सवालात उठाए हैं। बिल्डिंग्स और फायर सेफ्टी के क़वानीन सबके लिए बनाए गए हैं। छोटे मोटे मुनाफे की खातिर ज़िंदगियों और प्रॉपर्टीज़ का इतना बड़ा नुकसान बहुत ही घाटे का सौदा है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा की खूबसूरत वादी चिपोरसन गुज़िश्ता कई माह से खौफ और बेयकीनी की अलामत बनी हुई है। 12 देहात और तकरीबन 4000 आबादी पर मुश्तमिल ये वादी जुलाई 2024 से ज़ेरे ज़मीन धमाकों जैसी आवाज़ों का सामना कर रही है, जिसके बायस लोग शदीद सर्दी में भी घरों के दरवाजे खुले रखकर मुकम्मल लिबास और जूतों समेत सोने पर मजबूर हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक ये आवाज़ें ज़्यादातर रात के वक्त सुनाई देती हैं। बाज़ औक़ात इनके साथ झटके भी महसूस होते हैं, जिसने ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों समेत पूरी आबादी को ज़हनी तनाव में मुब्तला कर रखा है। ज़िलज़िले आते हैं तो पहाड़ से पत्थर गिरते हैं, वो जाके टकराते हैं घरों को, और जिसे जो है ना घर गिरते हैं, और ज़ाहिर है वहाँ बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आजकल तो माइनस में जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, सर्दी बहुत ज़्यादा शिद्दत से है। तो इस वजह से लोग मतलब इस हालत में अपने बच्चों को और या खुद उसमें रहना उनके लिए आसान नहीं है। 19 जनवरी 2026 को आने वाले 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद उम्मीद थी कि ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, मगर धमाकों की आवाज़ें अब भी जारी हैं। सरकारी इदारों और माहिरीन अर्ज़ियात का कहना है कि ये आवाज़ें इंसानी सरगर्मी नहीं, बल्कि फ़हाल फॉल्ट लाइन्स, कम गहराई वाले मामूली ज़लज़लों, चट्टानों की हरकत और ग्लेशियर्स के पिघलने के नतीजे में पैदा हो रही हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और डिज़ास्टर मैनेजमेंट माहिरीन के मुताबिक चिपोरसन, कराक्रम और खुदादाद फॉल्ट्स के ज़ेर असर एक हसास ज़लज़ला जोन में वाक़ है। माहिरीन का कहना है कि ये वाक़यात किसी बड़ी कुदरती आफत का फौरी पेशखेमा नहीं, ताहम मौसमियाती तब्दीली और टेक्टोनिक सरगर्मियों के बाइस मुस्तकबिल में ऐसे झटके बढ़ सकते हैं। दूसरी जानिब मुकामी आबादी का मुतालबा है कि सिर्फ वजाहतें नहीं, बल्कि अमली हिफाजती इक़दामात, महफूज रिहाइश और वाज़ेह लाए अमल दिया जाए, ताकि वो खौफ के साए में नहीं बल्कि इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो आए, उनकी मदद करे, और मतलब मुस्तकिल उसका जो है हल तलाश करे कि क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि जाहिर है एक घर बनाने के लिए इंसान की पूरी ज़िंदगी लगती है। उनके माल मवेशी होते हैं, उनके खेत होते हैं, उनके वहाँ स्कूल्स होते हैं, वो सारी उनकी जमा पूंजी वहाँ लगाए, तो उसको छोड़ के कहीं जाके सेटल होना भी उनके लिए आसान नहीं है। और सामीन, अब पेश है वुसअतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात। कॉमेडी एक तना हुआ रस्सा है, कब एक सीधा सा चुटकुला या पंक्ति मानहानि हो जाए, किसके जज्बात का कब अपमान हो जाए, अश्लीलता की सीमा क्या है और क्या नहीं, ये सब देखने और सुनने वाले के मूड पर है। हम खबरदार किए देते हैं कि जो कॉमेडियन, कवि, साहित्यकार या निर्देशक आज के दिन राजनीति के छत्ते में हाथ डाले तो फिर वो हमारे भरोसे न रहे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं किसी कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी, वीरदास या संजय लीला भंसाली की बात करने का माहौल बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपका आपसी मामला है, मुझे क्या लेना देना। हमारे यहाँ तो जब से साइबर क्राइम्स एक्ट लागू हुआ है, पकड़ धकड़ के लिए किसी का स्टैंड अप कॉमेडियन होना भी ज़रूरी नहीं। कोई भी ऐला मैला या आदरणीय कर्मचारी उठकर किसी भी पत्रकार, यूट्यूबर या लिखारी पर देश, धर्म, जज, सेनापति, प्रधानमंत्री, मेंबर पार्लियामेंट या अपनी तौहीन या देश दुश्मनी का पर्चा कटवा के तुम्हें मुझे अंदर करवा सकता है। एक मुकदमे में ज़मानत मिल भी जाए तो दूसरा पर्चा तैयार। जब तक आप माफ़ी ना मांग लें और वैसे देशभक्त या सेवक ना बन जाएं जैसे स्टेट को चाहिए। जहां सहन शक्ति का कांटा ज़ीरो को छू रहा हो, वहां हंसी मजाक, जुगत और स्टैंड अप वगैरह अक्सर पतली गली से निकल लेते हैं। जितनी बर्दाश्त मेरे दादा और बाप की पीढ़ी में थी, आज मुझ में उतना ही डर बैठ चुका है।
ایسے میں سوچتا ہوں کہ خدائے سخن میر تقی میر زندہ ہوتے تو شاید اس شعر پہ ہی مار دیے جاتے کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو کہ ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. یا مرزا غالب کو یہ کہنے پہ کوئی سیشن جج مرتو دنڈ سنا سکتا تھا کہ دل خوش ہوا ہے مسجد ویراں کو دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں احمد فراز نے جب اپنی نظم محاصرہ لکھی تو انہیں دیش چھوڑنا پڑا. حبیب جالب کو یہ کہنا مہنگا پڑ گیا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. ضیاء الحق کے مرنے کے 22 ورش بعد ہمارے دوست محمد حنیف کا پہلا انگریزی ناول اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز آیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، مگر 5-7 سال پہلے اس ناول کا اردو انواد چھپا تو گپتچریے ساری کاپیاں اٹھا کے لے گئے. بلوچستان کے شہر گوادر میں پچھلے مہینے 4 چھاتروں کو پولیس نے پاکستان دشمن کتابیں بیچنے پہ پکڑ لیا. ان کتابوں میں نیلسن منڈیلا اور ہوچی من کی جیون کتھائیں بھی تھیں. ہمارے پترکار دوست وحید مراد کو گزرے ہفتے ہی سادہ کپڑوں والے آدھی رات کو گھر کا دروازہ توڑ کے لے گئے، کیونکہ وحید نے بھوتپورو مکھیہ منتری اختر مینگل کا ایک ٹویٹ شیئر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے. اختر مینگل کے گھر میں کوئی نہیں پھاندا، مگر وحید مراد 3 دن غائب رہے. جب بھی سرکاریں اصل مدعے حل نہیں کر سکتی تو جھیپ مٹانے کے لیے اکثر بات بے بات اچھل پڑتی ہیں تاکہ لوگ باغ کچھ سمے کے لیے ہی صحیح دبک جائیں. یہ کوئی نیا کھیل نہیں. لگ بھگ 300 ورش پہلے جب ہندوستان میں ہر طرف لوٹ مار اور ہاہاکار مچی پڑی تھی اور عام آدمی بھوک مری کے ہاتھوں زندگی سے تنگ تھا، تو مغل بادشاہ فرخ سیر نے اردو کے کوی جعفر زٹلی کو یہ شعر کہنے پہ پھانسی دے دی تھی کہ سکہ زد بر گندم و موٹھو مٹر، بادشاہ تسمہ کش فرخ سیر. یعنی تسمہ باندھنے والے فرخ سیر کے ہوتے اناج، دال اور مٹر پہ بھی ٹیکس لگ گیا. آج فرخ سیر بادشاہ ہوتا تو جعفر زٹلی کو پھانسی پہ لٹکانے کی بجائے اسپیشل برانچ CBI FIA یا ٹیکس کرمیوں کے ذریعے اٹھواتا، الٹا لٹکوا کے اتنے پرچے کٹواتا کہ جعفر میاں کو اناج، دال اور مٹر کی بجائے نانی یاد آ جاتی. ہم نے پچھلے ہی ہفتے چیتاونی دی تھی کہ راجا اور راجا کے گھوڑے سے ہر وقت ساودھان، جانے کس بات پہ خوش ہو جائیں اور کب دلتی جھاڑ دیں. پر ہماری سنتا کون ہے؟ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. تہران اور واشنگٹن کے درمیان تناؤ بڑھتے ہی ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی نئی جنگ علاقائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے جنگ شروع کی تو اس بار یہ علاقائی جنگ ہوگی. ایرانی نشریاتی ادارے ISIS کے مطابق خامنہ ای امام خمینی کی حسینیہ میں لوگوں کے ایک بڑے ہجوم سے خطاب کر رہے تھے. خامنہ ای نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہوائی جہازوں اور بحری بیڑوں وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ماضی میں امریکیوں نے اپنی تقریروں میں بارہا دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ جنگ کے آپشن سمیت تمام آپشن میز پر ہیں. خامنہ ای کا کہنا تھا کہ اس بار اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ ایران تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے تک پھیل جائے گی. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز بلوچستان میں ہونے والے حملوں میں شدت پسندوں نے 2 خواتین کو بھی استعمال کیا تھا. اتوار کے روز سیالکوٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ شدت پسند نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. سنیچر کے روز بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہونے والے حملوں کے متعلق وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ کل جو واقعات ہوئے ہیں ان میں 2 جگہوں پر خواتین کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور انڈیا ان دہشت گردوں کی
पुष्ट पनाही कर रहा है। इंडिया ने बलूचिस्तान में अमन को मुतासर करने की कोशिशों में मुबैना इंडियन किरदार से मुतल्लक पाकिस्तान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दे दिया है। वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के इल्जामात लगाना पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की पुरानी हिकमत अमली है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का जबर, जुल्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड किसी से ढका छुपा नहीं है।